Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to start a new chapter 12 that is practical geometry. तो practical geometry में हम लोग देखते हैं first parallel lines and transversal. We have already studied about lines and angles. In that we had studied about parallel lines. So when a pair of parallel lines is cut by a transversal, here you can see two parallel lines, that is a pair of parallel lines cut by a transversal. Okay, so a set of angles are formed. Okay, which are those angles? You can see here 1 is equal to 2, then 3 is equal to 4, 6 is equal to 7, 5 is equal to 8. So these angles which are equal to one another, they are because they are corresponding angles. For example, 1 is equal to 2, corresponding angle. 3 equal to 4, it's a corresponding angle. 6 equal to 7, 5 equal to 8. These are corresponding angles. Then there is another set of angles which are formed. For example, 5 and 6, it's a straight line and it's a pair of linear angles. Sum of these two angles, angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degrees. This we have already seen. Now next set of angles are, you can see here, angle 6 and angle 2, sum of these two, angle 6 plus angle 2 is equal to 180 degrees. How? These angles lie on one side of the transversal, okay, and these are interior angles here between two parallel lines. You can see these two parallel lines, and in between the two parallel lines, angle 6 and angle 6 plus angle 2 is equal to 180 degrees or supplementary angles. They form pair of supplementary angles. Isn't it? Same way, angle 5 plus angle 4 is equal to 180 degrees. It is also lying at one side of the transversal between two parallel lines. So today what we will see in practical geometry is, in exercise 12a, construction of parallel lines. How to construct parallel lines. Okay. Let's see. Construction of parallel lines, exercise 12a. So the first question is, draw a line PQ and take a point R not on line PQ. Through the point R, draw a line MN parallel to the line PQ. That means we have to draw a straight line, that is PQ, and there is a point which doesn't lie on this line but away from this line, and from there we have to draw another parallel line, that is this line, the other line should be parallel to PQ, which the point R should be on that parallel line MN. Okay, how to draw that we'll see today. तो कैसे होगा? फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो है लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है PQ. Okay, you have to draw a line PQ. Name it as PQ. Then take another point R which is not there on the parallel line. तो यहाँ पे R एक पॉइंट लेने का, और उसके बाद इस पॉइंट को एक पॉइंट PQ को ज्वाइन करने का है. जैसे कि यहाँ पे O लिया है, so what you do is join this point R to this parallel to this line PQ at point O. तो ऐसे ही ड्रॉ कर लेने का यहाँ पे लाइन OR. ओके, O जो है वो PQ पे लाई करता है. ओके, तो ये क्या हो गया? एक लाइन और उसके ऊपर एक रे हो गया. ओके, यहाँ पे एक लाइन. नाउ वी हैव टू डू अ पैरेलल लाइन, अनदर लाइन दैट इज विच इज पैरेलल टू PQ ऑन दिस R. That means this point R lies on that parallel line. कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत ही इजी है. What we have to do is take any radius. एक रेडियस ले लेने का. यहाँ पे देखिएगा, एक रेडियस ले लेते हैं OS. ठीक है, तो ये OS यहाँ पे रेडियस ले लेने का और एक आर्क ड्रॉ कर लेने का. ठीक है, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और देखिएगा OS इज अ रेडियस. वी हैव टेकन एनीथिंग, एनी आर्क, वो रेडियस हमें कोई भी रेडियस लेने का है.
एंड देन वी नो दैट दिस, ये जो रेडियस है उसी रेडियस को लेकर यहाँ पे OQ यानी कि इस रेडियस को कट करने का है इस OR लाइन को, तो एट Q। ओके, तो यहाँ पे Q मिल गया अपने को पॉइंट। अभी उसी आर्क को लेने का है एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ अनदर आर टेकिंग R एज द पॉइंट, सेंटर पॉइंट। तो सेम रेडियस से हमें यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना होगा। अगेन इट कट्स पॉइंट एट पॉइंट T ऑन OR। तो यहाँ पे OR पे एक पॉइंट कट किया और वो मार्क किया हम लोगों ने T। दैट मीन्स ये OS जो है दैट इज इक्वल टू RT। OS इज इक्वल टू RT। अभी हमें यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल गया T। अभी क्या करना है, अभी हमें पैरेलल लाइन MN ड्रॉ करना है। हाउ विल वी डू दैट? यस, वी कैन डू इट। ऑलरेडी हमें QS मिला है ना, Q और S पॉइंट है अपने पास, तो इसको मेजर करने का है ऐसे। ये देखिएगा यहाँ पे मेजर कर लिया, तो उसी मेजरमेंट से यहाँ पे एक कंपास से उस मेजरमेंट को लेने का है फ्रॉम दिस SQ। सो वी हैव टू टेक दिस मेजरमेंट ऑफ SQ, ऐसे फिक्स करना है, SQ लेने का है और उसी मेजरमेंट के हिसाब से वी हैव टू टेक T एज द सेंटर पॉइंट एंड ड्रॉ अनदर आर्क हियर। तो यहाँ पे हमें एक और आर्क लेना है और वो आर्क यहाँ पे इस आर्क को मीट करेगा जो ऑलरेडी हम लोग ने ड्रॉ किया था। RT को एक्सटेंड किया था ना, ये आर्क को यहाँ पे कट करेगा, दिस आर्क। ओके, नाउ वी आर गेटिंग अ पॉइंट U here. Okay, we are getting a point U. That means SQ is equal to TU. SQ, ये जो है SQ is equal to TU. Okay, ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम है और ये जो डिस्टेंस है वो सेम ले लेंगे, इसको यहाँ पे कट कर। अभी हमें R एंड U को ज्वाइन करना है। Let us join these two points R and U। तो ये यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, तो इसे एक्सटेंड कर लिया RU को, तो ये हमें मिल गया MN मिला। एंड यू नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हेन डज इट हैपन? इट हैपन्स इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है इन केस ऑफ टू पैरेलल लाइंस व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स द टू पैरेलल लाइन। सेट ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड। व्हिच एंगल्स आर these? These are known as alternate angles। alternate angles कैसे फॉर्म होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल। तो ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तभी ये MN इज पैरेलल टू PQ है कि नहीं? ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमें PQ इज पैरेलल टू MN मिल गया। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ MN पैरेलल टू PQ इज डन। बहुत ही केयरफुली मेजरमेंट के साथ लेना है विथ कंपास एंड अ स्केल। दिस completes the question 1 of exercise 12. Next question. Draw a line M parallel to the line CD which is at a distance of 6 centimeters from the line CD. तो यहाँ पे देखिएगा, in this case we have to draw a parallel line from CD. Draw line M parallel to the line CD which is at a distance of 6 centimeters. यहाँ पे distance दिया हुआ है 6 centimeters. That means between the two parallel lines the distance should be 6 centimeters. तो कैसे करेंगे? Okay, यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे let the line be CD. We'll mark it as CD. Okay, तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया CD. Now what we will do is we'll take 2 points, any 2 points, और मोर देन हाफ ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का मोर देन हाफ ले लेते हैं एंड विल ड्रॉ आर्क
ऐसे और नीचे भी ऐसे. ओके, विल ड्रॉ एंड अगेन फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ये मोर देन हाफ. ओके, तो ये दोनों हो गया. व्हाट वी विल डू इज विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स. यहाँ पे देखिएगा ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया ऐसे. तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिला है, CD है एंड देन वी गॉट अ पॉइंट हियर O. ठीक है, और यहां से O से एक परपेंडिकुलर मिला, ये Q, पॉइंट Q मिला है, परपेंडिकुलर है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक 6 सेंटीमीटर्स का मेजरमेंट. विल टेक 6 सेंटीमीटर्स का मेजरमेंट. यहाँ पे देखिएगा 6 सेंटीमीटर्स का मेजरमेंट ले लिया और इस पॉइंट से, इस O पॉइंट है तो उसको यहाँ पे कट कर लिया. ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कट होता है एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे कट किया तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR एनीथिंग. ओके, विल मार्क इट एज, यहाँ पे ये इसको P कर देंगे और इसे Q कर लेंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया Q. नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट है. सो ऑन दिस Q विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर है लाइन, CD OQ इज परपेंडिकुलर टू CD. तो 6 सेंटीमीटर्स यहां से लिया और यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लिया और इस आर्क को जो यहाँ पे कट करता है इस परपेंडिकुलर लाइन को, तो वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लिया. ओके, ये लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, वो हो गया M. OQ is perpendicular to CD. Now OQ is equal to 6 centimeters. We draw a line from this point Q. एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं M. And this line is M. We'll name it as M. M is parallel to CD. Parallel to CD क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. The distance will always be 6 centimeters. हमेशा ये जो लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स इज 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर दीज 2 आर पैरेलल लाइन्स. ओके, तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन.